सामने शहंशाह फज़ाइल व मसाइल जनाब अल्लामा आकिब ज़ैदी साहब और वो खिताब फरमा रहे हैं। ये जो दरवाजे में मोमिनीन बैठी है आगे तशरीफ ले आए ताकि बाद में आने वाले मोमिनीन के लिए जगह तमाम मोमिनीन। और इसके बाद जनाब इमरान रज़ा जंजीर साहब भी तशरीफ ले आए हैं, वो खिताब फरमाएंगे। अब आपके सामने जनाब आकिब ज़ैदी साहब और बरामदे में मौजूद मोमिनीन की हॉल में तशरीफ ले आए। मेहरबानी करें जो यहाँ भाई बैठे हैं इधर आगे आगे तशरीफ ले मोमिनीन आने वाले तक मेहरबानी करें आगे आगे उठाए जनाब आपसे मुखातिब में अंदर आ जाए। मेहरबानी करें उठाए, मेहरबानी होगी। हमारे मेहमान खतीब जनाब सैयद आकिब ज़ैदी साहब मोहम्मद वाले मोहम्मद के सामने पेश करेंगे। एक दफ़ा बाबा बुलंद जहाँ जहाँ पे बैठे हैं या कोई पिंडाल में बैठा है एक नारा बुलंद करना चाह रहे हैं, तमाम मेरा साथ देंगे, उसका जवाब क्या है नाम के साथ करेंगे। नारे पूरे जुलूस में भरपूर हाजिरी करें। आपके सामने अमल की हालात भरपूर नारों का जवाब दें, भरपूर मानवदारी करें और अव्वल से लेकर आखिर तक हमारे साथ आपका यही दावत होता है। आप शिरकत कर रहे हैं, हमारे लिए भाई से फख्र है। बाबा हुसैन थोड़ा सा आवाज निकालें, अपने गले में जितनी ताकत है बाबा बुलंद जवाब दें। किसी नारे की मुखालफत की जा रही है, वाजिब नहीं औजब समझ के इस नारे का जवाब दें। हाथों को बुलंद करके
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الملائکۃ والوالدین الطیبین الطاہرین المعصومین وبعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا صلوات
اعتماد اور مجھے یقین ہے اچھے اور بہت اچھے اللہ کی پوری بیلٹ ایسی ہے. تو غازی بھائی نے بہت جگہ سے مجھ سے اگلے سال کے لیے معذرت کروا کے عشرۂ محرم انشاءاللہ میں 10:30 بجے آئندہ سال آپ کے خدمت میں یہاں پر حاضر ہوں. جیسے نہ آپ لوگ ادھر ادھر کی بات سنتے ہیں نہ مجھے ادھر ادھر کی بات آتی ہے. ولایت ہے جیسے نام پہنچانی ہے ڈنڈے کے زور پر نہیں زبان کے زور پر. اخلاق اور کردار اور ادب جو کہ ممبر ادب والوں کا ہے اور انشاءاللہ اسی طرح کا رشتہ ملے گا. آج ہی پریشر بیٹھے گا. میں یہ بات آپ سے کیونکہ عربی کے حوالے سے مجلس سے میرا سارا ذہن اسی طرف ہے. یہاں سے میں آج کی بات کی ابتدا کروں گا تاکہ نوجوان دوستوں کو بھی علم ہو کہ آپ مجھے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے انداز میں کہاں تک سماعت کرتے ہیں. بہت بڑا مشکل ہے اور ہمارے اوپر بڑی ذمہ داری ہے. صرف نعرہ لگوانا ہمارا مقصد ہے, نعرے والے کی حقیقت آپ تک پہنچانا یہ ہمارا مقصد ہے. ہونا چاہیے روئی زمین پر جب جناب آدم کو بھیجا گیا تو جبریل ان کے پاس 3 چیزیں لے کر آئے. کتنی؟ کہتا لگتی کعبہ کی 2 میں آسمان میں کیا لائے ہو؟ پہلے میں عقل, حیا اور دین لائے. سارے حالات آدم کی دنیا کے آپ کے سامنے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بات کرنا چاہتا ہوں. میری گفتگو ہر مکتبہ فکر کے لیے برابر ہوتی ہے, چاہے کوئی برادران تشریف بیٹھا ہے یا برادران سنت. میں سب کی آئے کا احترام کرتا ہوں کیونکہ یہ درس کا وہ ہے, وہ صحیح وہ درس نہیں ہے جسے ماننے کی یہ اللہ نے مدد کی کہتی ہے. اس کی میرا ساتھ دیجیے گا. میں عقل, حیا اور دین آیا ہوں. کہ وہ کہتے ہیں کہ کعبہ کے 2 میں آسمانوں پہ بھیجوں گا. آدم فرماتے ہیں کہ عقل مجھے دے دے. عقل جناب آدم کو دی. حیا اور دین سے جبریل کا واپس آسمانوں پہ جاؤ. حیا اور دین کا جبریل تیرا کہنا اپنی جگہ, ہمیں یہ حکم ہے جہاں عقل رہے گی وہاں ہم رہیں گے. نہیں بولنے کو نلفائے گا, بولنے کو نلفائے گا. جہاں میں پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بڑی لکھی بات کہنا چاہتا ہوں, جہاں عقل ہوگی وہاں ہم رہیں گے. اب سب بولنے کو نلفائے گا. اب جہاں عقل ہے وہی حیا ہے اور وہی دین ہے, اور جہاں عقل نہیں ہے نہ وہاں حیا ہے. آپ کو بولنا ہے اتنا بڑا اجتماع بیٹھا ہے تو خاموش بھی تو بنتی نہیں ہے. میں نے کہا جہاں عقل ہے وہی حیا ہے اور وہی دین ہے, اور جہاں عقل نہیں ہے نہ وہاں حیا ہے. اس سب کے ایک بڑی بات بولے, جہاں عقل ہے وہی حیا اور وہی دین, اور جہاں عقل نہیں ہے نہ وہاں حیا ہے نہ وہاں دین ہے. میں سلطان کربلا کا فرمان کہتے ہوں کہ جب یزید نے مولا کو خط لکھا کہ میری بیعت کرو تو امام نے یہ کہہ کر جواب دیا, خبردار وہ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یزید یاد کر قیامت تک نسل تیری بھی چلے گی, قیامت تک نسل حسین کی بھی چلے گی, قیامت تک تذکرہ تیرا بھی ہوگا, قیامت تک تذکرہ میرا بھی ہوگا, مگر ہم دونوں میں ایک فرق ہوگا اور وہ یہ جہاں عقل ہوگی وہاں حسین ہوگا, جہاں جہالت ہوگی وہاں یزید. جو 14 کی پناہ میں گزر ہوتے ہیں, فرمایا جہاں عقل ہوگی وہاں حسین ہوگا. اس بولے میں رفائے گا ایسا اور جہاں جہالت ہوگی اچھا آپ بولے میں رفائے گا بھئی جہاں عقل ہے وہی حسین, اور جہاں عقل نہیں ہے کیا 67 ریاستوں کا مالک ہے. ذرا چلا کی سمجھیے اس کی
कितनी 19 यानी 60 हिजरी में 67 रियासतों का मालिक था। हजारों लोग इसकी बैत कर चुके थे। मेरा सवाल है, एक हुसैन बैत नहीं कर रहे थे तो इसकी नींद क्यों हराम थी? ऐसा बोले तो भाई, एक हुसैन ने जनाब बैत नहीं कर रहे तो क्यों बार बार कर दिख रहा है कि हुसैन से कहो मेरी बैत है? भाई सारी दुनिया तेरी बैत कर चुकी है, रियासत तेरे पास है, हुकूमत तेरे पास है, सल्तनत तेरे पास है, मसीहियत तेरे पास है, हर शय तेरे पास है। तो ये हुसैन से बैत का तरफदार क्यों तवज्जो? यदि फासिद को फाजिल था, दुश्मन अहले बैत चलाक था, वो जानता था हजारों लोगों की बैत बशर की बैत है, हुसैन की बैत दीन की बैत। मैं सबकी तवज्जो करने लगा। मालिक आप सब हजारों लोगों की है किसकी थी? बचत में मैंने लेकर की पूरी हिस्ट्री पढ़ी हुई है और यहाँ से जोरा और अदीब साहिबान का ताल्लुक है वो भी मेरे जहन में है। अगर कहें तो मैं यहाँ कोई अहले सुन्नत के रूप से सुनाऊं, अगर सब बोले तो मास्टर जायद से जो के अहले सुन्नत हुसैन ने इनकार कर दिया। सब नाम लगा दस्ते यजीद आपका के बिना इलाज हुसैन, करोड़ों लोगों हज़ार लोगों की बैत बशर की थी, हुसैन की बैत दीन की थी। इमाम ने इनकार कर दिया। अहले सुन्नत के शायद मास्टर कहते हैं, ऐ हुसैन मैं तेरे अहद में होता तो ऐ हुसैन इब्ने अली, मैं तेरे अहद में होता तो ऐ हुसैन इब्ने अली सबसे पहले तेरे इनकार को सजदा करता। सबसे पहले तेरे इनकार को सजदा करता, तेरे इनकार में तौहीद के खिलाफ थी। फांसी को वाजिब था ना, वो जानता था हुसैन का हाथ हुसैन का नहीं, मुस्तफा का हाथ है। जागेगा वो मंजर में हुसैन से बैत का तरफदार था। अगर आप मजबूर किए तो फिर समाज कीजिए और पस मंजर में किला और आपको भरोसा रखे, पस मंजर में वो मुस्तफा से बैत का तरफदार था, क्योंकि वो जानता था कि रसूल ने कहा हुसैन बिन्नी बोलेगा वहाना मिनल हुसैन। और हुसैन ने यजीद और यजीदियत के इरादों को इस तरह मिटाया कि आज 1400 साल के बाद 90 बरस के बूढ़े को भी खबर नहीं कि यजीद की कब्र कहाँ है, और 4 बरस के बच्चे को भी हुसैन करबला है। मालिक आपको सलाम करके देखिए, एक बार बताया ना हर आंख में आंसू है कि हुसैन से दर हकीकत है, इनका किसी को खबर नहीं। हुजूर किबला किसी को नहीं मालूम कि यजीद की कब्र कहाँ। 6 बरस के बच्चे को भी खबर है, बोलेगा हुसैन कहाँ है, बोलेगा पैदा बिठाएंगे तो और बनवाएगा। फिर रोई की ने चाहा मैं बहुत जगह से आज भी आपकी जियारत करने सर आप लोगों के करीब आते खिदमत हो, मालिक आपको आबाद रखे और असरदारी होनी ऐसी चाहिए जैसी ना हो। हाँ ये अगर ये अल्लाह ऐसे सामने हो तो आप एक साथ आप उसे 50 साल में बेगुनाह पढ़ने को तैयार हो, लेकिन सुनने वाले इस तरह के अब आप होने चाहिए। ये खबर नहीं है कि यजीद की कब्र का, और बच्चे को भी खबर है कि हुसैन भाई हजरत की हदीस आप तो इतना अच्छा पढ़ते वो फरमाते झुकाना चाहा था जिस सर को शाम वालों ने बोले बोल भाई आपका बोलना ही यजीदियत के मुंह पर तमाचा है। हाँ, ये आपकी खामोशी थी कि लोगों ने सर
उठाने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह शिया ने हैदर जानते हैं कि जब हम मुत्तहिद हो जाएं दुश्मन हमारा कुछ न कल बिगाड़ सका न आज बिगाड़ सका। झुकाना चाहा था जिस सर को शाम वालों ने, झुकाना चाहा था जिस सर को शाम वालों ने, शिकस्त देखी उस सर को खुद उठा के चला। झुकाना चाहा था और मैं मालिक आपको सलाम करके झुकाना चाहा था, फिर मैं झुकाना चाहा था जिस सर को शाम वालों ने, शिकस्त देखिए उस सर को उठाने चले। ये हुसैन का काम था, बंजर जमीन को आबाद करके मोहल्ला बना दिया। इनका बंजर जमीन को आबाद किया, ऐसा आबाद किया, ऐसा आबाद किया कि मोहल्ला बना दिया। कोरोना जैसे हालात में भी जो सरकारी तौर पर आदाब शुमार इराक से आए 1,24,00,000 ज़ायरीन फिर भी मौजूद थे। इस मुश्किल वक्त में भी कि जब इतनी पाबंदी की फ्लाइट से चल रही, मालूम नहीं कि क्या है, करोड़ आप आम हालात में गूगल पे सर्च करें ना कि करबला के वक्त में कितने अफराद आ सकते हैं, तो जेलों की वजह से इसलिए आपको नहीं पढ़ रहा हूं, तो आपको जवाब मिलेगा 45 लाख। ये 45 लाख से ज्यादा अफराद नहीं आ सकते। मालूम नहीं जहां 45 लाख से ज्यादा कितना लोग आ नहीं सकते, वहां हर गरीब पर 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ तो आला सदर में मैं था, वहां पे 4 करोड़ की तादाद थी। लिखने वाले ने लिखा कि जेलों में हुसैन के दिन करबला की जमीन लास्टिक की तरह फैलती जाती है, बोलते हैं कि दुरुस्त आएगा, बोलते हैं कि दुरुस्त आएगा, लास्टिक की तरह फैलती जाती है और उसमें आने वाले को अपने अंदर समाती रहती है। खास भाई आपसे देखिए आखिरी बंदे तक ऐसा भक्ति कर रहा हो। अगर आप कहें तो एक मोर्चा बताओ, ये सब बोले तो मोर्चा बताओ। करोड़ों अफराद करबला मोहल्ला में यौम आखिरी जेलों के दिन हुसैन की कब्र पर होते हैं। मौजूदा ये है उन करोड़ों अफराद में से कोई भी अपने घर जाकर ये नहीं कहता कि करबला में इतना रश्त और मैं भूखा रहा। हाय हाय हाय, पता नहीं मुझे बात समझ में आई है, मुझे खबर नहीं है कि कौन कितना बोल सकता है। कोई ये नहीं कहता कि मैं भूखा रहा, कोई ये नहीं कहता कि मैं प्यासा रहा। काशिफ भाई मुझे खबर नहीं है कि ये इंतजाम कौन करता है, बशर के बस की बात नहीं है, और अगर बोल पड़े तो फिर कौन होगा। दुनिया में इंसान के पाँव पड़ता है कि मुझे कुछ खिला दो। मेरा वादा रहा कि अगर तुमने मैंने समझा कर आप बोल लिए तो आप इसी साल इंशाअल्लाह करबला जाएंगे। मैंने दुनिया में इंसान के पाँव पड़ता है कि मुझे कुछ खिला दो। करबला वाहिद धरती है जहाँ बंदा बंदे के पाँव पड़ता है कि मुझसे कुछ खा। जो शबीर के कमरे में बैठी एक मेरे फराज कोई होता ना जब मेरी शैतानी की चाह, लेकिन अभी इस तरफ सुनिएगा ताकि मालूम हो कि हुसैन कौन है। इंसान के पाँव पड़ता है मुझे कुछ खिला दो। करबला वाली धरती जहाँ इंसान के पाँव पड़ता है कि मुझसे कुछ आम आजाद किसी जेल से जुलूस में चले जाए 1 लाख अफराद में और वहां कोई भागदड़ बन जाए तो लोग गिर जाते हैं, उठाने वाला कोई नहीं होता। यहाँ करोड़ों अफराद होते हैं, अगर तो कोई गिरता नहीं, अगर कोई गिर जाए तो करोड़ लोग जाते हैं, ये चले तो हम चले। अल्लाह अल्लाह मारेगा आलिम। अब देखिए
करबला जाने की तड़प क्यों? चले इमाम से शायद पूछो बोले तो आपकी शायद के सामने करबला का नाम आता है तो उसके दिल में करबला जाने की तड़प क्यों आती है? तो सुनिएगा, फरमाइए कि अल्लाह जब हमारे हुक्मरान को बना रहा था उसकी मिट्टी में एक चुटकी खा के शिफा मिला रहा था। इतनी रूहानियत है ना, सुनिए बड़ी बड़ी एक चुटकी बोलेगा खा के शिफा मिला रहा था जो भारत में पर मैं वो खा के उसे मजबूर करती है कि जब करबला का नाम आता है तो करबला जाने की हुजूर तरह आती है। चलिए इसी बात में एक बात और सुन जो मेरे नाम के बिल्कुल अकीदे पर पूरी उतरती है। क्या किया उदार की मंत्री में एक चुटकी ऐसा बोले आप अच्छा सुन रहे हैं। अगर पढ़ने जितना आप रो पड़े थे यहाँ पर दो जुमले मसाइल के भी कहता तो मैं इस मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन मेरा अपना दिल है कि इतने अच्छे सुनने वाले इतनी तादाद में होने पर भी माँ बहनें भी समाप्त कर रही हैं, मालिक की पर्दों को सलाम करके तो फिर सुनिए एक एक चुटकी खा के शिफा मिला रहा। मैंने इशारा करता आप सारे पढ़ते भी हैं, अच्छा सुनते भी हैं, तो जरूर इस जुमले को समझिएगा। खा के शिफा की खसूसियत जानते क्या? सिद्धता तस्वीर में जो खा के शिफा है इसकी खसूसियत जानते क्या है? इसकी खसूसियत ये है काजी भाई जुमला मैंने समझा दिया तो जब तक दोबारा आपकी नबी में नहीं आता, जब जब आपको याद आएगा, जब जब आप नमाज पढ़ेंगे, जब जब मातम करेंगे, जिक्र सुनेंगे, आप मेरे दुआ करेंगे। ज्यादा नहीं तो आइंदा साल जब तक ऐसे नमाज पढ़ने के लिए नहीं आता आपको जुमला इंशाअल्लाह याद रहेगा। खाकी शिफा की खसूसियत ये कि ये अपनी हालत पर 364 दिन अपनी हालत पर रहती है, मगर आशूर के दिन खून उगलती है। मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया। ताकि शिफा तस्वीर के दिन खून उगलती है, चाहे वो तस्वीर में हो, चाहे वो सजदगा में हो या मोमिन के बदन में हो। रंजीर मारकर आप खून निकालते हैं, ये इसलिए आपके बदन से खून निकलता है कि इसमें ताकि शिफा मौजूद है और ताकि शिफा की तासीर इसी पे राजी रहिएगा कि मैं पढ़ता जाऊँ आपकी आंखों में आंसू है। इसका काम है कि तस्वीर के लिए खून आगे उगलती है। चलिए मेरे बाद पढ़ने वाले इमरान जमील साहब भी आगे मौला की मदद है। बस आप समाज कीजिए कि ये खातिर शिफा अल्लाह जब अपने खुदार को मासूम के बना रहा था तो उसकी मट्टी में जो चुपड़ी खा के शिफा मिला वो खाक उसे मजबूत करती है वो करबला जाए। क्योंकि मुसलसल आपकी आंखों में आंसू है तो अब मैं आपको कोई ऐसा फजीलत का जुमला कहा जा रहा दोबारा फरमाने की तरफ लाना चाहता। मैं 2016 में खुद जब चेलों में इमाम हुसैन इस्लाम के लिए गया और चेलों रिहाई और तमाम मामला आपको मौला की मदद आने बेहतरी ये पड़ेगी। बस ये जुमला मैं आपको समझाना चाहता हूँ कितना करीब है ये घराना। बस ये सुनिएगा। 2016 के यूट्यूब पर ये मुद्दा मौजूद भी है। एक खातून ना मोहम्मद हुसैन अलैहिस्सलाम को देखकर तारे बार रो रही है और एक दुआ मांग रही है। वाला मैं आपका रबी करने में बच्चों के साथ आई थी और इस रश में मेरी बच्ची मुझसे बिछड़ गई और मैं बिना बच्चों के अपने वतन जाना नहीं चाहती। मुझे अपने बच्चों का वास्ता, मुझे मेरे बच्चे मिला। अभी ये रो रही थी क्या उसके दोनों बच्चे फांसी पाई नतीजा चलने वाला बैठा इसके दोनों बच्चे माँ के पास आए और माँ के हाथ को थाम कर कहते हैं माँ हम यहाँ इशारा मैंने करना समझना आपने अम्मा हम यहाँ आए। माँ ने ऐसे बच्चों को देखा
फिर हुसैन साहब ने उमर को देखा कि ये कितना करीब है, कितना सही है, कितना नजबार है, क्या कहते हुसैन थे, क्या कहते हुसैन थे। पास में और को देखा, बच्चे मिल गए, शुक्रिया अदा कर लिया, क्या अब रोती क्यों है, उसने कहा रो कर शुक्रिया अदा कर लो, इतना करीब है। मैंने तो अपने गूंगे बच्चे वापस मांगे थे, इसलिए मुझे जबान वाले अदा कर। मेरा सलाम हो अली की उन बेटियों पर जो दीन पहुंचाने के लिए बाजारों में मौला आपके आंसू को कबूल मौला आपके आंसू को कबूल करवाए। जेलों में जेलों के सिलसिले की मजलिस है, क्या कुछ हुआ आपको ईमान जगी था सुनाएंगे। मैं तो बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि रोना हजरत अली की बेटियों की जो 11 मुहर्रम को बेपना ऊँटों पर बैठने लगी तो हाथ यहाँ बंधे हुए थे, मक्तल के लिए एक ही जुमला कहा और ऊँटों पर बैठ गई, रो कर हुसैन का कहना भैया मैं शाम जा रही हूँ मगर भैया मैं जब तक जिंदा रहूंगी इसी बात पे वादा करूंगी, भाई भी मेरा मारा और रोने भी मुझे नहीं दिया गया। और जब मुझे इस हिम्मत की कसम मैंने जो पढ़ा है वो यही है कि 11 मुहर्रम को हर बीवी को बेपनाह ऊँट पर बिठाया गया, हुसैन की यतीमा को बांधा गया। अल्लाह बता दो बल्ला अजरों को बल्ला जुमला ये है काफी, मैं छोड़ कर नहीं पढ़ूंगा, मैं छोड़ कर नहीं पढ़ूंगा। हारे को बिठाया गया और हुसैन की यतीमा को बांधा गया। एक जगह ऐसी आई कि हुसैन का सर के सीना पे हो गया, सिमर ताजियाना लेकर आया, सैयद सज्जाद बाबा से कहो आगे चले। हुसैन ने कहा कैसे चलूं, मेरी सकीना ऊँट से नीचे गए, जब तक सकीना नहीं मिलेगी मैं आगे नहीं चल सकता। अजरों को बदलता यही वजह है कि जब लुटा हुआ काफिला वापस मदीना आया ना, मेरे चौथे मौला से मिनहाल ने एक सवाल किया, मौला शाम के बाजार में वो पहला कौन सा मौका था जहां आपने कहा काश शाम से पहले सज्जाद मर जाता, रोजाना काश शाम से पहले सज्जाद मर जाता। मौला जानते क्या था, इमाम ने कहा मिनहाल ऐसे तो कई मौके आए, मेरे मौला एक मौका बता अंदर करे मैं बताऊं। इमाम बोले मिनहाल दूसरे का